Hello everyone. Welcome to another session of How to Ace, and in today's session we are going to focus on geometry. That is your next paper. In our session today, our chief guest is Mr. Vilas Parab, a senior faculty of mathematics at Balmohan Vidya Mandir School, Mumbai. Mr. Parab, he comes with an experience of more than 20 years. He has corrected thousands of papers, and today he is going to share with us important information with respect to how to write the geometry paper, what are the silly mistakes to be avoided, what are the key points to remember, and more importantly, the time management, and much more. Let us begin the session. Thank you, Vilas sir, for joining How to Ace the Geometry paper session. Your session is definitely going to help thousands of students who are appearing for the Maharashtra State Board exam for the geometry paper. So, sir, to start off with, the first question is, what are the key things the students are supposed to remember, key points the students are supposed to remember with respect to their geometry paper? Okay, regarding this, what a geometry paper, key points. Okay, so the key points means what? First of all, the formulae. That's the most important thing. They should remember all the formulae related to that particular topic. For example, the trigonometry, or we say that circle, or the Pythagoras, area of triangle, area of square, sort of the formulae they have to remember. Okay, here I would like to add one thing. That is, whenever they will get the question answer paper, I think that around 10 o'clock they will get the answer paper. So by 10 to 10:20, they can write all those formulae on the last page. It is not considered as a copy. Okay, so they can write all those formulae as well as this what a value table for the trigonometry, means sine 30, cos 30, like that. So that is the one thing. Then regarding the construction, the key thing is what? They have to practice before the exam. Okay, construction should not be done by only eyes. Okay, so they should practice that actually, means they have to draw. That's the most important thing. Then key point, another key point is very important, that is a 3 marks. Question number 3b, there is a compulsion that the board should ask at least one theorem in question number 3b. So there are 5 to 6 theorems. For example, basic proportionality theorem, Pythagoras theorem, then tangent segment theorem, then cyclic quadrilateral theorem. So they have to just by heart prepare those theorems. Okay. So board will give you this only statement. They have to draw a diagram, then write down the given TPT and the proof. So if they prepare prior this thing, so surely they will get 3 marks. Okay, for the theorem. These are the things which they have to do completely. Okay, so that was really crisp, sir. And when it comes to while appearing for the paper, what are the common fears the student they face, and how should they overcome those fears? Okay, for especially for the maths paper, they have the fear of question number 4 and question number 3. Okay, so students, I would like to inform you that don't worry about the question number 4 and question number 3. First of all, what to do? See, if you have fear of this thing, don't read this question number 4 and question number 5. Okay, within those 10 minutes, that is a 10:20 to 10:30. Don't read that question. Okay, otherwise, see, sometime what happen if वो question जो है अगर difficult आ गया, so that may create the tension, and then you will carry that tension for the whole 2 hours. So better avoid that. Those who are comfortable with this, they should read that. No problem. Okay. Another thing is what? How to handle those? How to handle that fear regarding the question number 4 and 5? कुछ नहीं है. Question को शांति से पढ़ो. That is most important thing. Many times, what is our observation that students don't read question properly, don't interpret that properly. So first interpret that properly. उस question में ही सब कुछ होता है. Okay, so read that question properly, understand the question, understand the given thing, and establish the relation. First of all, find out the topic to which that particular question or the problem is related. मतलब भाई ये सर्कल का है, ये ट्रिगो का वैल्यूज का है, जो भी है, just correlate that and start thinking over it. Okay,
Now, for example, in this what question number 5 also, they may ask you to frame the this thing, question, problem. So while framing the problem, अंडरस्टैंड द सोल्यूशन कि भाई ये सोल्यूशन किसका है, तो उस हिसाब से मुझे क्वेश्चन आना चाहिए. और इफ आई वांट टू राइट डाउन माय कंक्लूजन, हाउ कैन आई राइट माय कंक्लूजन? तो ये थोड़ा सा वहां पे थिंकिंग करके आंसर लिखना है. सो दैट इज द वन थिंग दैट दे हैव दिस व्हाट अ फियर. अनदर थिंग इज व्हाट रिगार्डिंग द सर्कल. Many students face the problem regarding the circle. My dear students, what I want to tell you, just understand what is given and what is asked. So in terms of this word angle and arc, find out the relation between them. It is a what type of the angle, whether it is a central angle, inscribed angle, or the vertex lies outside the circle, vertex lies inside the circle. And accordingly find out the relation and just start. जो दिया है ना, उसका जो नहीं दिया है, उससे relation establish करो and then start. So I'm sure that you will not face problem in circle. Yes. So, sir, over a course of time, we have observed that there are three category of students. One is a student whose preparation level is low. Another student preparation level is moderate, and third is a student where the preparation level is high, right? So, what advice would you give for all those students जिनका preparation low level एकदम कम है, moderate है और high है? Okay. जिनका लो है उनके बारे में आई कैन गिव यू दिस वर्ड सजेशन कि भाई पेपर समझो, आज एक पेपर हो गया साइंस 2 का, कल छुट्टी है, परसों आपका मैथ्स 2 है. कुछ नहीं है, आप क्या करो कि भाई क्वेश्चन पेपर सेट रहते हैं या कोई भी रहता है, तो उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो है पूरा, वो सब क्वेश्चंस का जितने भी आपके पास क्वेश्चंस है या क्वेश्चन बैंक है, उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 पूरा एमसीक्यू और 1 मार्क्स क्वेश्चन, वो पूरे 8 मार्क्स के आप सॉल्व कर लो. वो 8 मार्क्स में से आपको 6 मार्क्स तो मिलने ही वाले हैं. ओके, दैट इज वन थिंग. सेकेंड थिंग इज व्हाट थियरम बाय हार्टेशन. आई एम सेइंग बाय हार्टेशन, एक्चुअली इट्स नॉट द गुड टर्म, लेकिन करो कि भाई डायग्राम क्या निकालनी है इस स्टेटमेंट के लिए और उसके नीचे क्या क्या लिखना है, वो आप कर सकते हो. देन कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स, दैट विल आल्सो सेव कि भाई कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट में आप टेंजेंट निकालना है बाय यूजिंग सेंटर, विदाउट यूजिंग सेंटर, ये भी टॉपिक आपको मार्क्स देके जाता है. देन द पाइथागोरस में ज्योमेट्रिक मीन और पाइथागोरस, ये याद रखो. और दूसरा जो लो स्कोरिंग है उनके लिए, प्रिसाइजली उनके लिए कि भाई आपको पूरा सम नहीं आता, डोंट वरी अबाउट इट, बट वॉट एवर यू नो, इफ यू नो द फॉर्मूला, राइट डाउन द फॉर्मूला, पुट वैल्यूज. ओके, इफ यू आर नॉट गेटिंग द फाइनल आंसर, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये 2-3 स्टेप्स लिखोगे ना, तो वो 2-3 स्टेप्स को भी मिलेगा मार्क्स. आप छोड़ो मत. या बाकी सबके लिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मैं बोलता हूँ कि आपको लगता है वो डिफिकल्ट है ना, तो उसके कुछ जितने स्टेप्स आते उतने लिखो. ओके, उससे आराम से आप पास हो सकते हो. बाद में आपका जो है रिगार्डिंग द एक्टिविटीज आल्सो गिव यू द मार्क्स. सब बच्चों को एक्टिविटीज मोस्टली दे कैन हैंडल दैट वेरी वेल, लेकिन सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है. और जो लो है या ऑल ऑफ देम, just practice all the exercises before the exam. It's not possible to practice all those examples completely, मतलब पूरे के पूरे नहीं कर सकते हम लोग, तो जितने हो सकते उतने तो आप कर लो. भाई समझो डिस्टेंस निकालना है तो एक हाथ करो. बाद में जो दूसरा है कि भाई फाइंड आउट द बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट, उसका एक हाथ करो. या साइन कॉस टैन में से निकालना है वैल्यू, तो उसका साइन का करो, कॉस का करो, like that. So in this way, okay. और जो दूसरा है, I would like to talk about this, what are those who want to score out of. तो उनके लिए mainly what's the problem कि भाई sir, regarding this activity, whether we have to write down the additional steps or only those steps. See बच्चों, आप लोग पूरा सम सॉल्व करो और जो स्टेप्स उन्होंने पूछा है एज एन आंसर, उसको आप बॉक्स करो. यहाँ पे वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, बॉक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट विद द हेल्प ऑफ अ पेन. अगर आपने बॉक्स नहीं निकाला तो आउट ऑफ जो बच्चे होते हैं उनके लिए वो डिफिकल्ट होता है कि भाई दे विल नॉट गेट मार्क्स. ओके, सेकेंड थिंग इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के लिए आप शुरुआत करो, आप इजीली चार्ज होते जाओगे, आप सॉल्व करते जाओगे. इसके लिए अभी हाउ टू प्रैक्टिस दैट थिंग, सर हमको पता नहीं है, वो बाहर का आता है, वो बाहर का वगैरह कुछ नहीं है.
सिर्फ आउट ऑफ टेक्स्ट होता है बट बेस्ड ऑन द सिलेबस। आप कंटेंट को समझते हो ना तो इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए आप सीधा एक 4-5 पेपर ले लो, उसमें से जो क्वेश्चन नंबर 4 या 5 में पूछे गए हैं उनको आप एनालाइज करो कि किस तरह से किया गया है, सॉल्व किया गया है, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ये बात हो गई। यस Sir, when you are correcting the paper as a moderator, what is that thing that you look out for on a paper where you say, हाँ ये बच्चे को ना out of देना चाहिए? Like you mentioned के boxes का. What else you see while going through the paper के you are convinced that this child deserves a out of marks? Yes, sir, the quality of answer, that's the most important thing. एक मॉडरेटर्स के बारे में बहुत गंदा फैला हुआ है रूमर्स कि वो लोग कम करते हैं या मार्क्स देते नहीं है वगैरह। ऐसा कुछ नहीं है। आपके पेपर में अगर क्वालिटी है ना तो वी टेक केयर ऑफ दैट चाइल्ड कि उस बच्चे को मार्क्स मिले। ये हम लोग सोचते हैं कि भाई अभी यहाँ पे क्या देखना है। समझो उसको 40 एग्जामिनर ने 40 आउट ऑफ 40 दे दिए तो मेरे पास आ गया, तो मैं क्या करूंगा कि एब्सोल्युटली जो भी टॉपर होगा वो क्वालिटी पेपर ही होना चाहिए। तो पहले जो है कि भाई 90s के जहां जहां राइट एंगल के मार्किंग होते वो किए है कि नहीं है। कंस्ट्रक्शन में भी प्रॉपर वो जो मार्किंग करने हैं वो किए है कि नहीं है वो देखना है। सेकेंड थिंग इज स्टेप्स में यूनिट्स दिए है कि नहीं है। जहां पे यूनिट्स पूछे जाते हैं, मतलब whether you have to write down the answer in terms of this what a centimeter meter whatever that is, so वो प्रॉपर दिया है कि नहीं है। सपोर्ट्स फॉर द रीजंस मींस फॉर द इंडिविजुअल स्टेटमेंट वो प्रॉपर रीजन दिया है कि नहीं है, वहां पे कट हो जाता है। बाद में मैंने कहा बॉक्सेस है, वो बॉक्सेस में कट हो जाता है। अनदर थिंग इज व्हाट मेनी टाइम स्टूडेंट्स फॉरगेट टू राइट अ फाइनल आंसर। ये अपने फाइनल स्टेटमेंट लिखा है कि नहीं वो भी देखा जाता है। अगर वो नहीं लिखा है तो वहां पे कट हो जाता है। सो इन दिस वे वी टेक, अदरवाइज एवरीथिंग इज इजी, डोंट वरी। मतलब जो भी आप लिखोगे। हाँ, वन मोर थिंग इज देयर कि जो 40 आउट ऑफ 40 वाले बच्चे होते हैं ना उनको एक फियर रहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो बी होता है वो पूरा डिटेल में लिखो। एक एक मार्क्स के लिए आधा आधा पेज लिख लेते, नो नीड टू राइट डाउन। वो जो क्वेश्चन है 1 2 3 स्टेटमेंट में ही खत्म होता है, तो आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, बाकी कुछ नहीं। वहां पे ज्यादा आप लिखे तो आपको एक से ज्यादा मैं मार्क्स दे ही नहीं सकता हूँ, तो वहां पे डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके What are the silly mistakes that you have observed while correcting the paper? Yeah, silly mistakes regarding the sign, that is the most important thing. साइन में बहुत सारे बच्चे मार्क्स उनके जाते हैं। मतलब जहां पे माइनस होना चाहिए वहां प्लस लिखते हैं, प्लस के जगह पे माइनस लिखते हैं। सेकेंड थिंग रिगार्डिंग द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो जो कोऑर्डिनेट कॉपी करते हैं ना उसमें कुछ गलती से दूसरा ही कॉपी कर देते हैं। मतलब समझो यहाँ पे 4 - 5 है तो वो वहां पे 4 + 5 लेते हैं, या x की वैल्यू पे 5 लिख देते हैं, y की वैल्यू पे 4 लिख देते हैं। दैट इज द वन इंपॉर्टेंट थिंग। सो दैट्स व्हाई आई सजेस्ट कि भाई आप लोग x1 y1 जो भी करोगे ना उसके सर पे ही लिखो, तो आपको वो मतलब आपसे मिस्टेक नहीं होगी। दैट इज द वन थिंग। सेकेंड थिंग इज व्हाट कि भाई क्वेश्चन जो है वो पढ़ते नहीं है प्रॉपर। दैट इज द मेन प्रॉब्लम कि क्वेश्चन ना पढ़ने से जो इंटरप्रिटेशन होता है मैथ्स 2 में वो इंटरप्रिटेशन इजीली नहीं होता है और उसके लिए वो मार्क्स जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिसाइजली फॉर द एरिया ऑफ ट्राइंगल जो सिमिलैरिटी में है, सो सी बेसिस आर इक्वल देन एरियाज आर प्रोपोर्शनल टू द हाइट। लेकिन बच्चे क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यू इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। भाई ये सिमिलैरिटी के लिए है, इक्वल बेसिस के लिए नहीं है, इक्वल हाइट्स के लिए नहीं है। तो ये थोड़ा सा वहां पे उनकी गड़बड़ हो जाती है। देन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी में जो कैंसलेशन होता है ना, तो कई बार क्या होता है कैंसलेशन में 1/3 आ गया, बच्चे लिखते हैं 3 कि भाई 1/3 जो होना चाहिए तो वो 3 लिख देते हैं, उनके हिसाब से बराबर है लेकिन हमारे हिसाब से ये गलत है। वन मोर थिंग दैट इज द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी में अब अगर आपको लाइंस पैरेलल दिखानी है तो समझिए वहां पे AP/PB इज इक्वल टू AQ/QC लाना है। बच्चे डायरेक्टली लिखते हैं पहला ही AP/PB इज इक्वल टू AQ/QC और वैल्यूज भरते जाते हैं और इक्वल टू करते जाते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल 2/3 इज इक्वल टू 2/3। नहीं ना, गलत है। If I want to show that particular step as the last step, how can we start with that as a first step? तो यहाँ पर मार्क्स जाते हैं।
अनदर थिंग इज व्हाट ट्रिग्नोमेट्री में एंड में समझो tan स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ गया, तो tan इज इक्वल टू √3 ये नहीं लिखते, तो वो भी वहां पे भी मार्क्स चले जाते हैं। बाद में सब्ट्रैक्शन में इस बार कोविड में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें दिखाई दिया है कि बच्चे सब्ट्रैक्शन एडिशन में बहुत गलतियां कर रहे हैं। अनदर थिंग इज व्हाट इफ देयर इज अ रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, डायरेक्टली लिख देते हैं 5 प्लस 10, ऐसे रूट नहीं निकलता। मतलब ये प्रिसाइजली मैं बोल रहा हूँ कि वी आर गेटिंग दिस सच अ टाइप ऑफ द प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन कन्वे दिस सच अ टाइप ऑफ द मिस्टेक्स वेयर स्टूडेंट्स मे लूज मार्क्स, तो वो पहले से ही कॉशियस रह सकते कि ऐसे स्क्वायर रूट नहीं निकाला जाता, नहीं तो दूसरा पाइथागोरस पैदा होगा। Okay, okay. Sir, and what are the key tips you would like to give the students with respect to paper presentation? ओके, अभी मुझे जो आपने पूछा था वो मिस्टेक में एक रह गया है कि थियरम के लिए पूरा थियरम लिख देते हैं गिवन टीपीटी वगैरह, लेकिन डायग्राम नहीं निकालते, तो टॉपर्स का मार्क्स वहां पे जाता है कि भाई आपने डायग्राम नहीं निकाला तो पूरा प्रूफ आपका कैंसिल हो जाता है। ये टॉपर्स के लिए लूजर है। ओके, अभी टिप्स में मैं कहूंगा कि भाई आप क्या करो कि भाई जिस तरह से मिस्टेक्स भी कम हो जाए एंड यू कैन स्कोर मोर मार्क्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग 6 चैप्टर, हर एक चैप्टर में जो की टर्म्स है, मतलब समझो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सिमिलैरिटी में है, तो उसके सराउंडिंग जो जो क्वेश्चंस है, जो जो प्रॉब्लम्स है, वो आप प्रैक्टिस करो। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज की प्रैक्टिस, मैथ्स की प्रैक्टिस सिर्फ आंखों से मत करो, यू सॉल्व दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं, नहीं, आप सॉल्व करो, हैंड प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पाइथागोरस में अपोलोनियस नहीं है, तो जो पोर्शन नहीं है उसके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट मत करो। ओके, अनदर थिंग इज व्हाट सम क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व बाय इजी मेथड and some questions require this means some questions can be solved by easy method as well as can be solved by the lengthy method, so it depends on your marks, आपको किस तरह के मार्क्स है। वहां पे 1 मार्क्स के लिए है ना, तो आप एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला ले लो और वहां शुरुआत कर दो, मतलब डायगोनल और साइड के रिलेशन से। लेकिन 2 मार्क्स के लिए है तो यू हैव टू गो फॉर द पाइथागोरस, तो उस हिसाब से सोचो, दैट्स अ वन थिंग। देन कंस्ट्रक्शन में आप क्या करो कि कंस्ट्रक्शन का जो है आप पूरा प्रैक्टिस करो। कंस्ट्रक्शन में आपको सिमिलर ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन आ गया, तो उसमें पहले क्या सोचो कि भाई उसमें वर्टेक्स कॉमन है क्या। इफ वर्टेक्स इज कॉमन देन वी हैव टू गो डायरेक्टली फॉर द कंस्ट्रक्शन, इफ वर्टेक्स इज नॉट कॉमन देन वी हैव टू डू द कैलकुलेशन। बच्चे यहाँ पे भी गड़बड़ कर देते हैं, वर्टेक्स कॉमन है फिर भी वो लोग कैलकुलेशन करके निकालते हैं और 2 सेपरेट ट्रायंगल निकालते, तो 2 सेपरेट के लिए मार्क्स ही नहीं है, एक के अंदर एक है, एक के अंदर भी कौन सा किसके अंदर है, दैट इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो दे शुड जस्ट चेक दैट थिंग, या आप रिकॉल करो जहां पे भी आपको लगता है मेरी तरफ से मिस्टेक होती है, वो आप खुद जोर से बोलो कि नहीं भाई कौन सा, मतलब ये मिस्टेक में मैं ये ऐसा करना चाहिए, ये खुद को पढ़ाओ, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप खुद को पढ़ाते हो तो देन यू कैन रिमेंबर दैट वेरी वेल। ओके, ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ओके, मैं कॉन्फिडेंटली कहता हूँ बच्चों आप शुरू करो, हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपको प्रूव करना है ना, प्रूव करना है, ज्यादा से ज्यादा क्या करो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो टैन है ना उसकी जगह पे साइन अपॉन कॉस डाल दो, सेक है उसकी जगह पे 1 अपॉन कॉस डाल दो, कोसेक है उसकी जगह पे 1 अपॉन साइन डाल दो, और जो सिंपल मैथमेटिक्स है वो करते जाओ, आपका आंसर आते जाएगा। देन आइडेंटिटीज के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा ही, तो वो तो आप कर सकते हो ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। इन 3 आइडेंटिटी में से एक आइडेंटिटी में क्वेश्चन आएगा, सिर्फ वैल्यू भरनी है, स्क्वायर बाय हार्ट करने हैं और उसको फाइनलाइज करना है, ये हो सकता है। डिस्टेंस फॉर्मूला, उसमें भी क्वेश्चन आएगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला में मैंने कहा कि वो पॉइंट के ऊपर आप कोऑर्डिनेट लिखो, तो श्योरली यू विल नॉट कमिट मिस्टेक। तो इस तरह से किया जा सकता है। And lastly, sir, um, when it comes to time management of the paper, so can you give us a little bit in detail about how to manage the time while writing the paper? Sure, sir. The time management starts from the 10 o'clock. Okay, not 10:30.
सो यस, आपको आंसर शीट मिलने के बाद पहला मैंने जैसे कहा कि भी आपने मार्जिन ले ली, बाद में लास्ट पेज पे आप वो सब जो वैल्यू टेबल्स है या फॉर्मूले है आप लिख लो, नो प्रॉब्लम। ओके, इफ एनी सुपरवाइजर टेक्स ऑब्जेक्शन, बोलो ठीक है नहीं लिखता, बट दैट इज नॉट कंसिडर एज अ कॉपी। ओके, 10-20 को आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद व्हाट इज योर ड्यूटी, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सभी अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू होता है ऑप्शंस, उसमें से आपको जो ज्यादा आता है उसको टिक करो। ओके, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपको परमिट करता है तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप रीड करो। रीड करने के बाद आप यू डिसाइड कि उसमें से कौन सा करेंगे और उसके लिए कौन से टॉपिक से वो रिलेटेड है। वंस यू रिकॉल दैट टॉपिक, तो देन यू कैन सॉल्व दैट वेरी इजीली। ये हो गया। अभी 10:30 को आपको शुरुआत करनी है। 10:30 को शुरुआत करते समय फॉरगेट अबाउट क्वेश्चन नंबर 5, 4, फॉरगेट अबाउट दैट। स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। 1A, क्वेश्चन नंबर 1 है 8 मार्क्स के लिए आपका। तो 8 मार्क्स में आप क्या करोगे, 8 मार्क्स आपके 10 मिनट में होने ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सिर्फ ABCD लिखना है, उसमें से उसका आंसर वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे भी मार्क्स काटे जाते हैं कभी कभी, कुछ बच्चे जो है वो सिर्फ दे राइट ओनली आंसर, ओके, दे डोंट राइट दिस व्हाट दिस ABCD. So if you don't write, then you may lose the marks. So that's why what I'm suggesting is what, write down ABCD, whatever that is. If the answer is B, then write down the B option. Okay? तो वहां पे, लेकिन यहाँ पे भी आपको ध्यान देना जरूरी है कि 10 मिनट में खत्म करना, इसीलिए कैसे भी नहीं। तो ये जो है क्वेश्चन, इसमें कई बार आंसर जो होते पैरेलल होते, तो उसमें से आपको एग्जैक्ट आंसर चुनना है, तो उसके ऊपर ध्यान दो, उसकी वर्किंग वहां करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 भी उसी 10 मिनट में आपका चलेगा, या ज्यादा से ज्यादा आगे 5 मिनट, मतलब 15 मिनट में ये खत्म होना चाहिए। तो उसमें आप भी एक 2-4 स्टेप्स में ही खत्म होता है, ज्यादा नहीं। बाद में शुरू होता है अपना 2A, मतलब क्वेश्चन नंबर 2, 3। आप क्या करो कि 1 घंटे 45 मिनट्स में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 खत्म करने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि कोशिश करो, मैं बोल रहा हूँ, दौड़ाओ नहीं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आप लोग दौड़ाओगे उससे ना, तो वो क्वालिटी पेपर नहीं रहेगा। तो एक 45 टू 1 आवर में ये आपका खत्म हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 और 3। तो उसके बाद आपको वट एवर द टाइम यू गेट, दैट यू कैन यूज इट फॉर दिस व्हाट क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। समझो वो एक्सीड हो गया, 1 आवर एंड 15 मिनट्स हो गया, चलेगा। लेकिन आगे जाके क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के लिए थोड़ा सा आपको जो थिंकिंग करना है ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और एंड में एक 10 मिनट जो रहेंगे, ये 10 मिनट में आपको पेपर पूरा पढ़ना है कि भाई मैंने कुछ गलती तो नहीं की है ना, मैंने जहां पे भी हाईलाइट करने थे वो मतलब बॉक्स करे कि नहीं करे, आंसर जो है, सो फाइनल आंसर, द स्टेटमेंट, फाइनल आंसर स्टेटमेंट, इफ इट इज रिटर्न और नॉट, वो भी देखना है। लेकिन यहाँ पे एक 30 to 45 मिनट्स फॉर क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 के लिए आपको देने ही है, क्योंकि उसको अगर टाइम लगता है, लकीली अभी 2 पेपर जो गए हैं, मतलब अभी के जो पेपर हो रहे हैं वो इजी आ रहे हैं, तो आई होप दैट कि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का भी बच्चों आपको इजी ही होगा। अब उसका ओवर टेंशन मत लीजिए, इस हिसाब से आप करोगे तो। और मैं इसके लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, डोंट राइट एनी एनालिसिस। हाँ, लेकिन अगर इफ द क्वेश्चन डिमांड्स, फॉर एग्जांपल एज आई सेड कि भाई सिमिलैरिटी में अगर आपको कॉमन लेटर नहीं है, तो आपको एनालिसिस करनी होती है, आपको कैलकुलेशन करने होते हैं। लेकिन एनालिसिस में जो कि भाई ड्रॉ सेगमेंट एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और एक बच्चों का क्वेश्चन होता है रफ डायग्राम, सर रफ डायग्राम इज इंपॉर्टेंट, ड्रॉ इट, आई कैन से। कई बार होता है क्या कि मार्क डिस्ट्रीब्यूशन में कई मतलब ऐसे मैंने पाया कि कुछ ईयर्स में रफ डायग्राम के लिए मार्क्स नहीं होते, कुछ ईयर्स में होते, तो व्हाई नॉट टू सेटिस्फाई ऑल पीपल ना। तो रफ डायग्राम आप निकालो, और सिर्फ मतलब ऐसे फ्री हैंड ड्राइंग नहीं, स्केल और पेंसिल से निकालो। इफ इट इज अक्यूट एंगल, देन शो इट अक्यूट एंगल। वहां पे भी बहुत बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, 100 का एंगल जो होता है अक्यूट नहीं, अक्यूट निकालते हैं, वो ऑब्ट्यूस होना चाहिए, तो वो अक्यूट निकालते हैं, और उनको वो लगता है कि वो मैंने बराबर कर। तो वहां पे ये थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। बाकी टाइम मैनेजमेंट में इसी तरह से कि भाई पहला जो क्वेश्चन है 15 मिनट में खत्म हो जाए, बाद में का जो है
एक आध घंटे में, और 45 मिनट्स में जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 और 5. So, is there any section of the paper where you have observed students in a solving in a hurry? That is I think that this question number 1 A and activities. Okay. क्वेश्चन नंबर 1 में MCQs होते हैं, तो कई बार कैसे तुक्का लगा देते हैं. हाँ. तो यहाँ पे एक तो तुक्का नहीं लगाना है, हाँ. आपको थोड़ा सा विचार करना है, क्योंकि वी वांट दिस मार्क्स, एक मार्क्स आपका जरूरी है. तो आप प्रॉपर सॉल्व करो ना, मतलब वहां मत करो, रफ में करो. रफ में आप रफली मत सॉल्व करो. दैट इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट थिंग. जैसे मैंने कहा कि आंसर 1/3 है, हमको 3 लगता है, और 3 हम लोग MCQ में भी बी, समझो बी सेक्शन में दे दिया 1/3, सी में दे दिया 3, पर्पसली हम लोग ऐसे देते हैं, और आप वहां से 3 उठाते हो और आंसर है 1/3. तो जो MCQ वाले क्वेश्चन है, रफ में भी सिंसियरली सॉल्व करो, वो होता है. और एक्टिविटीज में भी, एक्टिविटीज में वो बॉक्स में क्या चाहिए, whether they want value or the any step, that is also the most important thing. मतलब समझो वहां पे मेजर ऑफ आर्क ABC चाहिए या उसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पे भी ध्यान देना है. नहीं तो हम लोग सिर्फ घाई में है, बॉक्स है भर लो यार, सब फिल इन द ब्लैंक्स करते जाते हैं. सो इट शुड नॉट हैपन. So that was really, really important, sir. And one last thing, as you mentioned about rough work. Yes. ये रफ वर्क कहाँ पर करना चाहिए पेपर में? Yes, that for the precisely for the English medium students, they do these rough works in that margin itself. नहीं, rough work वहां नहीं करना है. rough work जो लास्ट में, I think that they are having 20 pages answer sheet, तो 20th पेज पे करो, उसके बाद वो भर गया तो 19 पे करो. आपको सिर्फ एंड में क्या करना है, उसके ऊपर एक लाइन मार के कैंसिल कर देना है. दैट इज द ओनली थिंग. बट लास्ट पेज पे करो. किसके लास्ट पेज पे? क्वेश्चन पेपर, आंसर पेपर पे. क्वेश्चन पेपर पे नहीं. क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी नहीं करना है. तो आंसर पेपर जो आंसर शीट है उसके लास्ट पेज पे करो. और रफ वर्क करते समय एक सिस्टमेटिक ऊपर से नीचे आओ, क्योंकि आपको भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. आंसर कॉपी करते समय यहाँ पे वहां पे कर दिया तो कंफ्यूजन हो जाता है. तो ऊपर से नीचे तक एक सिंसियरली आ जाओ आप, लाइक दैट. So that was really, really crisp, short, and very, very clear, sir. And I'm sure that whatever tips and advice that you have given is going to reach out to thousands of students. In fact, the more the number of students it reaches, the more they are going to be benefited. Thank you very much, Vilas sir, for taking out time from your schedule. And I look forward to meet you in another session of ICA for helping the students. Right? Sure. Yes, yes. Thank you very much, sir. All the best, students. Okay. Practice sincerely. Surely you will get success. Don't worry. और पेपर इजी ही आएगा. डोंट वरी. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू. चलो, बाय बाय. बाय. थैंक यू.